Okay, so on 7th International Yoga Day, I welcome all on behalf of MIT University Mumbai and ICPR, Indian Council Philosophical Research. The program is sponsored by ICPR and organized by IBAS, DSW, ASSET and ME Yoga. Uh, I request our director sir, Dr. Gautam Gavli, जिनकी वजह से जो है आज ये प्रोग्राम हो पा रहा है, to say few words to all of us. Okay. Good morning, namaskar to all of you present here. It's a great pleasure for me to welcome you all on behalf of this 7th International Day for Yoga. This, as we all know, this day, International Day, is being celebrated since 2015. And this is 7th International Day for Yoga is being celebrated throughout the world. And we, as an academic institute, also participate in this International Day for Yoga. I have with me my colleague, Dr. Srikant Charhate sir, who is Dean of Academic MIT University. We have my other colleague, I could see Dr. Manjari ma'am. She is heading the Department of Languages. We have Dr. Deepak Havaldar, my colleague, who is heading the Department of Liberal Arts. And I could see many of our students, research students, my faculty is participating in this Yoga Day. And we all know the kind of role which yoga and meditation play in our life. Regular practice, if yoga and meditation become part of our lifestyle, it really help us not only maintaining our physical health, but it also help us maintaining our mental health. Now, this particular year, we are celebrating yoga as a well-being. That's something which is very interesting. And during this pandemic, the day which we are celebrating, it has a very, very important facilitating effect to deal with this pandemic. As we all know that this yoga practice or even meditation, it helps us to increase our concentration, our attention level, even our cognitive processing improves a lot. Our attention improves a lot, and our higher level of cognitive functions, it helps you. Yoga help us to facilitate the process of improving our cognitive functions. So I will not take much of your time on behalf of DSW, that is Dean Student Welfare, Dean Academic, Dr. Srikant Charhate sir, and our Honorable Vice Chancellor sir, because in his guidance and supervision, this Yoga Day is being celebrated. He will be joining us maybe in the morning session or in the afternoon session. He has promised me that he will be definitely joining the session, and he will also deal out a small this program, as Dr. Rekha Wagani, she is our coordinator, and she is also coordinator of AMI Yoga Club, which has been functioning since last few years. And this again program is being sponsored by Indian Council of Philosophical Research. So we thank you all for joining this morning to practice yoga, and we have resource persons. Of course, I will be requesting Dr. Rekha to introduce our resource persons. Okay, and I will not take much time between you and Acharya-ji. So over to Dr. Rekha. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your words. These are all motivating and guiding for all of us. So now I would like to introduce our योगाचार्य जी. तो मैं उनको हिंदी में ही इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी.
तो आप पंडित जी मेवालाल जी हैं, और मात्र 5 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है पतन पीड़ा निवारण के लिए, मानवता के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। और आपने श्री राम शर्मा आचार्य के सप्त आंदोलन की क्रिया, जिसमें कि नशा उन्मुक्ति, महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण, आयुर्वेद, इन सब धाराओं में उस उम्र से ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। आपने कई चांद्रायण महाअनुष्ठान करे हैं। आप पिछले 13 साल से जो है आप भोजन नहीं कर रहे हैं। और गायत्री धाम सेंधुआ आपके आध्यात्मिक जीवन की कर्म भूमि है। वहां पर आप एक बालक एवं कन्या गुरुकुल जो है वो भी है आपका, जिसमें कि 350 बच्चे जो हैं वो उस गुरुकुल में अपना अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं। उन्होंने कई कंपटीशन में इन बच्चों ने अपना नाम जो है वो उज्जवल किया है। वहां पर एक बहुत सुंदर गौशाला है, जो कि एक सामान्य गौशाला नहीं होकर के एक विशिष्ट गौशाला है, जहाँ पे विशिष्ट तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। आपने कम से कम 50,000 जो है व्यक्तियों को शराब से मुक्त कराया है, कई तरीके के व्यसनों से मुक्त कराया है। आज भी वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, उसमें आपने कई तरीके की हमारी सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन करने के लिए आप खड़े हुए हैं। और आपने ऐसे ही कितने लोगों को मोटिवेट करके और उन लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने के लिए आपने जो है प्रेरित किया है। आपने 500 गांव की यात्रा करके एक अच्छे समाज की स्थापना का संदेश जो है वो भी आपने दिया है। और आपकी जो सेंधुआ धाम है, वहां पे एक बहुत ही अलग तरीके का नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पे अध्यात्म का, योग का बड़ा अच्छा समावेश है। वहां पर विवाह करवाए जाते हैं, जो विवाह दहेज उन्मूलन के लिए, जिसमें केवल दो आत्माओं का मिलन होता है। वहां पे बाहरी जो चीजें हैं उन सबको जो है आपने ये एक साबित कर दिया है कि ऐसा विवाह, ऐसा आध्यात्मिक विवाह भी संपन्न हो सकता है। आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई में इतने छोटे से समय में भी आपने हमारा जो है ये स्वीकार किया इनविटेशन, और आज आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपना सेशन शुरुआत करें। प्रणाम। सभी योग साधक साधिका बहनों भाइयों को, सभी स्टाफ अमेठी विश्वविद्यालय के इस संयोजन में अखिल विश्व गायत्री परिवार, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य संरक्षण में और 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी भाई बहन स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की स्थापना के लिए, रोग मुक्त, दवा मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहां सर्वांगीण आरोग्य का जागरण योग की महाविद्या से हो। भाइयों बहनों, आज के आधुनिक युग में और वैदिक युग में हमारे ऋग्वैदिक काल से सनातन संस्कृति के ब्रह्म ऋषि मुनियों ने और इसके जानकार साधकों ने यह सिद्ध कर दिया जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव करके कि जो योग की महाविद्या है वह हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यूं कहे कि हमारे समग्र जीवन के विकास के लिए खाद्य पानी का काम करता है। क्योंकि जीवन की प्रवृत्तियां पेट और प्रजनन की सभी योनियों में समान होती है, लेकिन इससे हट करके प्रसुप्ति से जागृति की ओर यदि चलना है, जीवन के खजाने से कुछ खोजना है, तो उसके लिए अष्टांग योग का जो महर्षि पतंजलि ने मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से हमारे जीवन का वह रसायन शास्त्र है, वह विज्ञान शास्त्र है, वह जीवन विद्या की, जीवन जीने की कला है जो अनघड़ को सुघड़ बना देती है। और इसकी शुरुआत वेद मंत्र से
महामंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। उदयमान सूर्य के तेज की किरणों में हम, जहां लाखों करोड़ों भाई बहन विश्व के कोने कोने में, भारत के अलग अलग स्थानों पर इसी प्रकार से हम सब लोग बैठ करके एक समूह में जिस महाविद्या की साधना कर रहे हैं, एक छोटे से गांव से लगा करके महानगरों तक विभिन्न भाषा प्रांतों के क्षेत्रों में एक ही गूंज है, योग दिवस। और जब योग को स्थूल जगत में इतना एक साथ समूह में किया जाता है तो उसका सूक्ष्म जगत पे गहरा प्रभाव पड़ता है, और वह गहरा प्रभाव हमारे रोम रोम को पुलकित, सुरभित, चैतन्य, उल्लास से भरता है। तो हमारे यहाँ अलग अलग दिवस मनाने के पीछे हमारी केंद्र राज्य सरकारों की, प्रशासनिक व्यवस्था की, सामाजिक समरसता की एक ऐसी सद्भावना का जागरण हो कि आज का दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक स्वास्थ्य को आत्मनिर्भर बना करके स्वावलंबी आरोग्य को जीने के लिए एक साथ समूह में पूरा विश्व सोचे कि हम अपने आरोग्य को अपने हाथों से, अपने जीवन की योग में उन आसनों की रचना और पद्धति से सुदृढ़ मजबूत कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषियों ने कहा, जीवेम सरदम सततम, यदि 100 साल की आयु हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत मनुष्य जी सकता है तो शरीर दवाओं से नहीं, संयम से जागृत होता है। अनेक समस्याओं का समाधान योग विद्या में है, संयम विद्या में है। गायत्री महामंत्र के माध्यम से इस महाविद्या को हम वर्ण करने जा रहे हैं। उदयमान सूर्य के तेज में ऋषिगण, योगी जन और आप जैसे जागरूक दिव्य भाई बहनों का यह कार्यक्रम जीवन को सार्थकता प्रदान करें, इस भाव से उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण और प्रकाश शरीर में विद्यमान ऋषि सत्ताएं, महायोगी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिनके सानिध्य में हमें अपने निर्माण का अवसर मिला और जिनकी प्रेरणा से आज आपके बीच में बैठने की पात्रता मिली, ऐसे मेरी आराध्य सत्ता को मैं नमन करता हूं। आप सबके प्रति गायत्री परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी विभूतियों ने गायत्री परिवार के विचार क्रांति युग निर्माण के मंच से स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की स्थापना के इस दिव्य अनुष्ठान को आज आयोजित किया है। बहन रेखा जी मेघानी को, समस्त स्टाफ को और समस्त प्रतिभागी भाई बहनों के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। भाइयों बहनों, योग हमारे जीवन में इसलिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि आज हम लोग शारीरिक दृष्टि से निम्न स्तर के छोटे छोटे जो कार्य थे हमारे जीवन से, उन सभी कामों को मशीनों ने ले लिया है। ऐसे समय में योग विद्या हमारी अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को जागृत करके शरीर के 18.5 करोड़ रोमकूपों को, 10 खरब न्यूरॉन्स को, 340 जॉइंट को और हमारे शरीर के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास के लिए
योग के जो अलग अलग आसन है उसके हम आपको आज 4 पद्धतियां सिखाएंगे। खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम, जीवन शक्ति को जगाने वाले, पीठ के बल और पेट के बल पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र को मजबूत करने वाले, साथ ही बैठ करके शरीर संवर्धन के वो योगाभ्यास जो हमारी अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को सक्रिय करके रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, शरीर में औषधि बनाने की जो ग्रंथियां हैं उनका जागरण करते हैं। इसी के अंत में फिर हम अद्भुत 4 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और 2 पैकेज सीखेंगे, सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग के। 12 आसन सूर्य नमस्कार के, 16 आसन प्रज्ञा योग के। यह एक ऐसा पैकेज है जो हमें हर विधि शारीरिक दृष्टि से तो मजबूत करता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो आध्यात्मिक चक्रों के स्थान है, साथ हमारी जो वैज्ञानिक ग्रंथियां हैं, जिन ग्रंथियों के माध्यम से हमारे 7 चक्रों का, सहस्त्रार चक्र का, अज्ञात चक्र का, विशुद्धि चक्र का और हमारे अनाहत चक्र का, मणिपुर चक्र का, स्वाधिष्ठान चक्र का और मूलाधार चक्र का भी जागरण करता है। यह देह देवालय एक ऐसी ईश्वर की प्रकृति की दी हुई संपदा का खजाना है जिसको उसी तरीके से रत्नाकर रत्नों की खोज में निकलता है तो समुद्र की गहराई में जाता है और वहां से रत्न खोज के लाता है। समुद्र के किनारों पर सीप, शंख, कुछ हड्डियां, कुछ नमक मिलता होगा, लेकिन कीमती चीजों के लिए गहराई में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जीवन में हमें छोटा मोटा आनंद जो हम मिलता है, लेकिन परम आनंद यदि हम चाहते हैं तो नियमित रूप से न्यूनतम 15 मिनट, अधिकतम 30 मिनट का हम नियमित अभ्यास करने का आज व्रत लेकर के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। प्रथम चरण में हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके हम केवल 5 क्रियाएं बताएंगे, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ जाइए। दोनों हाथों को मेरी तरह धीरे से लंबा करिए और हाथों को इतना टाइट करिए कि पूरी उंगलियां अपनी अपनी दिशाओं में खिंचाव लेना प्रारंभ करें। आप आश्चर्य करेंगे, हाथ और पैर के पंजे रक्त परिभ्रमण और जीवन शक्ति को ऊर्जा देने के लिए यहीं से हमारी अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को हम सक्रिय करते हैं। अब धीरे से इन्हें गोल चलाइए, चक्र की तरह चलाइए। इतना गोल चलाइए, बहुत सुंदर, और गोल चलाइए। एक गोल चलना चाहिए, बहुत सुंदर। अब विपरीत दिशा में चलना चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब पहले जॉइंट को, दूसरे को, तीसरे को, मुट्ठियां खोले बंद करें, कलाई को चला लीजिए और गोल चला लीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ ढीले, कंधे ढीले, दोनों हाथ के हथेलियों को सीधी करेंगे। पीछे की ओर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे मध्य में, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, फिर सीधा बाईं तरफ। लोच के साथ झटका बिल्कुल नहीं देंगे,
एकदम स्मूथ शांत भाव से अनुभूति से पूरी गर्दन को वृत्ताकार, जिनको सर्वाइकल में दर्द है, सिर नीचे करने पे चक्कर आते हैं, उन लोगों को पूर्ण व्रत में ग्रीवा संचालन नहीं करना है, शेष भाई बहन करेंगे। रिलैक्स। अक्सर कंप्यूटर पर बैठने पर, मोबाइल का उपयोग करने पर या अधिक समय लिखने पर में दर्द होता है, टेनिस का दर्द होता है, सर्वाइकल में कहीं नस नाड़ियों के दबने से सर्वाइकल की तकलीफ होकर के सिर नीचे करने पे चक्कर आने लगते हैं। ऐसी दशा में चिकित्सक ट्रैक्शन देता है। अब हमको योग विद्या के माध्यम से सेल्फ ट्रैक्शन सीखना है। हमारी गर्दन को एक सीध में रखना है और हाथों को इस तरीके से फैला दीजिए उंगलियों को, और कनिष्ठ छोटी उंगली और अंगूठे को मिला दीजिए। देखिए ये मिला है, इधर नीचे भी मिलेगा। ये दोनों टीची उंगली और अंगूठा विपरीत दिशा में, बायां दायां, लेफ्ट राइट। अब देखेंगे इसको टच करने के बाद पूरे सिर के ऊपर हथेली को ऐसे रख दीजिए। 1 2 3 4 5 में इतना खींचेंगे हमारे कंधे कान से टच। 1 2 3 4 5 में इतना सिर पर लाके रिलैक्स छोड़ेंगे, मानो गर्दन कंधे पूर्ण रूप से रिलैक्स, शांत। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सेल्फ ट्रैक्शन आपकी सर्वाइकल की तकलीफ को जड़ से दूर करेगा, कंधों का खिंचाव दूर करेगा। इससे आप हाथ बदल के भी करेंगे, ये विपरीत दिशा में। चलिए, बायां हाथ खिंचाओ, ऊपर नीचे और ऊपर और नीचे, रिलैक्स। साधकों ये दोनों हाथों को इस प्रकार से ये बांधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में सिर के ऊपर रखिए। गर्दन को गगन की ओर सीधा, नेत्रों से छत को देखें। कंधों का, शोल्डर का दर्द, टेनिस का दर्द, जिनके कंधे घूमने में दिक्कत, खिंचाव लेंगे। बायां दायां, धीरे धीरे ऊपर गए थे, उसी स्थिति में धीरे धीरे हम नीचे आए हैं। रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ घुटनों पर। अब हम करेंगे अश्वनाद, घोड़े की तरह नाद करेंगे। इससे हमारे नाक, आंख, कान, गला, पांचों ज्ञान इंद्रियों को अब हम रोग मुक्त बनाएंगे। इससे चश्मा का नंबर कम होगा, सुनने की दिक्कत दूर होगी, गले की ग्रंथियां सक्रिय होगी, टांसिल नहीं होगा, सुगंध ग्रंथि, स्वाद ग्रंथि सक्रिय रहेगी और शरीर में स्फूर्ति आएगी, चेहरे पे तेज बढ़ेगा। इसका नाम है अश्व संचालन। होठ हमेशा पतले गुलाबी रहेंगे, चेहरे की क्रांति और सौंदर्य बढ़ेगा। होठों को गीला कर लीजिए जीवान से। अब नाक से सांस लेना है और होठों को अश्व की तरह आवाज करना है, घोड़े की नाद की तरह। नाक से सांस खींचिए, पेट को अंदर खींचते हुए सांस को मुंह से बाहर आवाज के साथ छोड़िए। 10 बार करना है ऐसा, और इतना आनंद आएगा, पूरे चेहरे की मसाज हो जाएगी। दोनों हाथ गोद में रखेंगे,
30 सेकंड आधा मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। जो थिरकन, जो संवेदनाएं, जो अजीब सी गुदगुदी, चेहरे पर प्रफुल्लता, आनंद, उमंग महसूस हो रहा है। हमारा रोम रोम, कण कण, शरीर का जर्रा जर्रा, मस्तिष्क कमल के पुष्प की तरह प्रफुल्लित हो रहा है। बिल्कुल न सांस लेना है न छोड़ना है, बस शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते रहिए, अनुभव करते रहिए। रिलैक्स, शांत। साधक भाई बहनों, अब हम चरण नंबर 2 में चलेंगे, जिसमें खड़े होकर अद्भुत 4 आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी जगह पर आप सभी खड़े हो जाइए। अभी हमने 5 सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। अब हम खड़े होकर के 4 अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए, ये एकाग्रता के लिए, शरीर के संतुलन के लिए इनकी बहुत महिमा है। नंबर 1, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। ताड़ासन को करने से एड़ी का दर्द, बैक पेन, कमर का दर्द, साइटिका का पेन ठीक होता है, ऊंचाई बढ़ती है। और यदि इसको हम नियमित अभ्यास में लेते हैं तो हमारे घुटनों में और नितंब के बाल में और एड़ी में अतिरिक्त हड्डियों का बढ़ना, कैल्शियम का रुकना, यह रोग कभी नहीं होंगे। 1, सांस लेते हुए, 2, सिर के ऊपर बांध करके, 3, ऊपर खींच करके, धीरे 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 एड़ी को उठाइए। रिलैक्स। जितना आप एड़ी को उठा सकते हैं, पैर की उंगलियों के बल पर आपको खड़ा होना है। बहुत सुंदर। एक आसन को हम 3 बार करेंगे। नंबर 2, धीरे से शरीर को वापस रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं, ये अद्भुत आसन है जिसका नाम है कटी चक्रासन। दोनों हाथ लंबे कर लीजिए और पैरों में 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। ये पेट के मोटापे को ठीक करेगा और हमारी कटी भाग, कमर दर्द को ठीक करेगा और कब्ज को भी दूर करेगा। बाईं तरफ से और फिर दाहिनी तरफ से, और बायां और दायां गोल चलाइए। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को ऐसे फैला दीजिए और 2.5 फीट की दूरी पर कटी चक्रासन 2, 1, बहुत सुंदर, 2, बाईं तरफ से इसे ऊषा पान के बाद भी करेंगे। ये उदर शुद्धि के लिए बहुत सुंदर आसन आपने सीखा है, ताड़ासन और कटी चक्रासन। अब हम करने जा रहे साधकों, इसका नाम है वृक्षासन। ये वृक्ष की तरह हमें अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, देखिए, बाएं पैर को धीरे से दाहिने पैर पर रखिए और दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा और आकाश की ओर धीरे से, छत को देखिए। इसमें बहुत सजगता रखना पड़ेगी, चढ़ता रखना पड़ेगी। इसमें गिरना नहीं है, थमना है। धीरे से उतार दीजिए। रिलैक्स। साधकों, अभी हमने बाएं से किया, अब हम दाहिने से करेंगे वृक्षासन। एक पैर को थाई के ऊपर जमाया और फिर धीरे से दोनों हाथों को आकाश में इस तरीके से खिंचाव दे करके छत को देखना है। वृक्षासन चित्त चेतना का एकाग्र, मन मस्तिष्क की दृढ़ता और शरीर की मांसपेशियों पर और शरीर के जॉइंट पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे साधकों अर्ध चक्रासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। ये नितंब के ज्ञान तंतु पर हमारे दोनों हाथों को ऐसे रखना है और धीरे से
सावधान की स्थिति में खड़े होकर के दोनों हाथ पीछे की ओर टाइट दबाएंगे। जितना झुक सकते हैं अपने सीने को, छाती को आकाश की ओर सीधा करना है। धीरे धीरे सांस को खाली करिए। सांस लेते जाइए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेंगे, कंधे ढीले, थोड़ा एकाग्र मन से रुकेंगे। दोनों पैरों में 2.5 फीट का अंतर करेंगे। साधक भाई बहनों, अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। इस आसन के अभ्यास से वजन तो घटेगा ही, हमारे नितंब, पिंडली, कंधे मजबूत होंगे। देखिए, इसको करेंगे अभी हम 10 बार। 1 2 1 2 1 2। बाएं से दाईं तरफ देखना है, इधर की सांस इधर छोड़ना है। ये हमारा गले से लगा करके स्वादिष्टान चक्र तक का और पीछे के रीढ़ का और सामने के स्पाइन का अपने दाया बाया चंद्र और सूर्य नाड़ी से शरीर के दूषित प्राण को बाहर फेंका है। रिलैक्स। साधकों, धीरे से आप लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम 5 अभ्यास करेंगे बैठ करके। पहला अभ्यास शुरू हो रहा है वज्रासन का। वज्र और शक्ति नाड़ी के लिए पहला आसन शुरू किया है। ये वज्र और शक्ति नाड़ी, इसे भोजन के बाद, खाना खाने के बाद जरूर करें। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कभी भी आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं होने देगा। धीरे से देखिए, शशांक आसन। दोनों हाथ आकाश में, अर्ध ताड़ासन। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की ओर। यहां पर हम 10 सेकंड कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। साधक भाई बहनों, अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। दोनों पैर के घुटनों के बल पर खड़े हो जाइए। पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। 1 2 और 3। अर्ध उष्ट्रासन। नितंब के ऊपर दोनों हाथ रखे हुए हैं और धीरे से पीछे की ओर रिलैक्स। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। ये ऊंट की तरह आकृति बनेगी। थायराइड के लिए, बैक पेन और कहीं गले में थायराइड ग्लैंड के ऊपर गांठ ग्रंथि बढ़ रही हो, उसे ठीक करता है। शरीर के 70% जल को संतुलित करता है उष्ट्रासन। ऊंट जैसी आकृति बनती है। देखेंगे, एक बाएं हाथ को इस तरीके से, फिर दाहिने हाथ को पूरा गर्दन, पूरी गर्दन, धीरे से रिलैक्स। 1 2 3 4 रिलैक्स। साधक भाई बहनों, यदि आपको शुगर है, यदि आपको इंसुलिन लगता है, इसे 10 मिनट आप रोज कीजिए। शुगर की बीमारी और पेट गैस की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी बिना दवा के ठीक होती है। मंडूक आसन में करना है कपालभाति। आइए
दोनों हाथ के अंगूठे मिला दीजिए और हाथ नाभि पे रखिए। अब हाथों को नाभि पे रखने के बाद मुंह से सांस छोड़ते हुए अपनी दाढ़ी को जमीन से टच करेंगे और फिर 15 सेकंड कपालभाति करेंगे। कपालभाति में सांस बाहर फेंकना है। श्वास लेते हुए रिलैक्स। आसन के साथ यदि प्राणायाम जुड़ जाता है तो हमारा शरीर उस आसन की आकृति में जिन ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है, प्राणायाम से तत्काल औषधि बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अकड़न जकड़न को योग खोलता है। नव निर्माण और नवीन प्राण का संचार प्राणायाम से हम उन ग्रंथियों का जागरण करते हैं जो हमें निरोग और स्वस्थ और बलिष्ठ बनाए। ये शरीर संवर्धन के आसन है। इससे सप्त धातु शरीर में संतुलित बनती है। किसी अंग अवयव में या कोई हमें पुराने ऐसे रोग जिनको हम जीवन पर्यंत दवा की ओर ले जाते हैं, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, गठिया, चर्म रोग, इन सभी को हम बचा सकते हैं शरीर संवर्धन के आसनों से। साधक भाई बहनों, अब हम अगला और महत्वपूर्ण आसन करने जा रहे हैं। इस आसन के अभ्यास से आपको नई ऊर्जा प्रक्रिया में मिलेगी। इसका नाम है वक्रासन। देखेंगे दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ पीछे। बाएं पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट को, और फिर राइट हैंड को इस तरीके से उठाइए, दाहिने हाथ को, और धीरे से इस प्रकार से पकड़ लीजिए। पीछे देखिए। अब करिए कपालभाति। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ पीछे। अब फिर दाहिना पैर मोड़िए और राइट को मोड़ करके लेफ्ट को सीधा रखेंगे। अब धीरे से बायां हाथ को पैर पकड़ेंगे। कपालभाति शुरू। रिलैक्स। अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड, गर्भाशय से संबंधित बहुमूत्र, इनसे यदि मुक्त होना है तो मेरी तरह आप बैठिए। इसे कहते हैं गौमुख आसन। एक गाय के मुख की तरह आकृति बन गई है। इस गौमुख आसन में बैठना है और इस तरीके से आप बैठे हैं। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ले गए ऊपर, पीछे से इसे पकड़ेंगे और फिर करेंगे भस्त्रिका। लंबी और गहरी सांस जोर से खींचो, छोड़ो। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इससे किसी भी प्रकार का लंग्स, फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा। हृदय की ब्लॉकेज नालियां खुलेगी। ब्रेन के अंदर कहीं ट्यूमर नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, लकवा नहीं लगेगा। इसको पैर बदल करके करेंगे। ये बदला है। बाएं पैर को दाहिने पैर पर रख दिया। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले गए हैं और फिर इस प्रकार से मिला दिया है। ये मिल गया। अब फिर करेंगे भस्त्रिका। पूरे पेट को खींचा, सांस को बाहर फेंका। पूरे डायफ्राम को फुलाया, सांस को अंदर खींचा। रिलैक्स। साधक भाई बहनों, अब हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। पेट के बल लेट जाइए। इसका नाम है पाचन तंत्र के लिए पहला अभ्यास। इसको कहते हैं मकरासन। मकरासन में ऐसे लेट जाइए। एक, धीरे से
दोनों हाथों को कान के पीछे अंगूठा और पैर मिला दीजिए। अब देखेंगे श्वास को बाहर फेंकेंगे कपालभाति। रिलैक्स। साधक भाई बहनों, दोनों हाथ आगे करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं कोबरा आसन, भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के पास और हाथ की कोहनी पसलियों के पास टच है। ये है पीठ, कमर, फेफड़ों को मजबूत करे, हार्मोन्स को संतुलित करे। और माता बहनों भाइयों को प्रोस्टेट ग्लैंड, बहनों को गर्भा से संबंधित बीमारियां, बहुत ही रामबाण दवा का काम करता है कोबरा आसन, भुजंगासन। पेट का मोटापा भी दूर करेगा और लीवर, किडनी, आंतों की मालिश भी करेगा और रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाएगा। देखिए, इतना पीछे जाना है, धीरे धीरे नाभि से वापस गर्दन तक आना है। उठते समय भी धीरे धीरे नाभि तक हाथ सीधे, वापस मकरासन। रिलैक्स हो जाए। साधक भाई बहनों, अगला आसन है शलभासन। दोनों हाथ दोनों नितंब में, बायां पैर लेफ्ट उठाइए, उठाइए, रुकिए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लाइए। साइटिका, कमर और बॉल का दर्द, मांसपेशियां, वेरिकोज वेन्स, नीली हरी नसें उभरना। शलभासन ये पेट का मोटापा भी कम करता है, शरीर में अतिरिक्त बढ़ी हुई चर्बी को भी जलाता है। दोनों पैर एक साथ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे उतारे। मकरासन। साधक भाई बहनों, अगला और महत्वपूर्ण अभ्यास हम करने जा रहे हैं। देखिए, पीठ के बल, यह पीठ के बल के जो 4 आसन है, ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए है। देखेंगे, पीठ के बल लेट जाइए, इसे कहते हैं शवासन, शीतलीकरण मुद्रा में। नंबर 1, दोनों हाथों को ऐसे अंदर डाल लीजिए और अब 1, 2, 3, इसे कहते उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। इसमें कमर में, पीठ, पसलियों में पानी नहीं रुकेगा, बहुत ही सहजता और आराम महसूस होगा। कमर के दर्द के लिए और रीढ़ की L1 से L5 तक के मणकों की गैप के लिए भी धीरे से दोनों पैर एक साथ। यह हाथ के हिस्से से पूरी कमर को टाइट हो गया। धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे उतारो, पूरा पैर टाइट, रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। उत्तान पादासन के बाद आसन क्रमांक 2, दोनों पैर मोड़िए। इसे कहते हैं सेतु बंद। सर्वाइकल, रीढ़, कमर के दर्द के लिए पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए, धीरे से कमर को ऊपर उठाइए और उठाइए। बहुत सुंदर। पूरी डाडी छाती से टच, ये डाडी छाती से टच हो जाए ताकि हमें जालंधर बंद, विशुद्धि चक्र गले के ऊपर थोड़ा रुकना है। इतना, रिलैक्स। दोनों हाथ पे लंबे ढीले सीधे कर लीजिए।
अब हम धीरे से अगले अभ्यास की ओर जा रहे हैं। पवन मुक्तासन। एक, बायां पैर मोड़िए। जिनको हरण्य पिंडी से वे भाई बहन इसे नहीं करेंगे। दो, दाहिना पैर मोड़ेंगे, हाथ से घुटने को पकड़ेंगे, दाढ़ी को टच करेंगे। हरण्य अपेंडिक्स का ऑपरेशन या जिनको हरण्य की तकलीफ है वे भाई बहन इसे नहीं करेंगे। दोनों पैर एक साथ, गैस, एसिडिटी, मोटापा, कब्ज के लिए धीरे से मोड़े। जिनको सर्वाइकल में तकलीफ है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो केवल यहीं तक करेंगे, यहां तक। और जो कर सकते हैं वही गर्दन उठा करके टच करेंगे। रिलैक्स। साधकों, धीरे से अब हम दोनों पैर मोड़ करके अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ पीछे, कटी मर्दनासन। बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन। इससे पेट की चर्बी घटेगी, मोटापा ठीक होगा, कमर दर्द, साइटिका के दर्द में आराम मिलेगा। इसे चौपाई पशु पक्षियों को देखा होगा। ये दो पाए चौपाई पशु पक्षी इस क्रिया को जरूर करते हैं। चाहे आपके आसपास बिल्ली, खरगोश, कुत्ते को भी देखेंगे। करोड़रज्जु, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को चलाना है, जो हमारे जीवन रूपी गाड़ी का चेचिस का पूरा कार्यक्रम, शरीर के एक एक अंग अवयवों का रीढ़ की हड्डी से ही संचालन होता है। बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन। बहुत सुंदर। रिलैक्स। पैर दोनों ढीले, दोनों हाथ सीने पर। शवासन। शवासन शीतलीकरण स्थिति में लेट जाइए। दाहिना पैर मोड़ेंगे, बाईं तरफ करवट लेंगे, दाहिने हाथ का राइट हैंड का सहारा लेकर बैठेंगे। साधक भाई बहनों, अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसन का पैकेज। शरीर को रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, शरीर में डी विटामिन को बढ़ा करके आपके शरीर की अस्थियों को मजबूत करता है। नंबर 1, मेरी तरह आप खड़े हो जाएंगे और बड़े ही उदयमान सूर्य की किरणों में मानो आपका शरीर सूर्य का रथ बनेगा, सूर्य की प्रतिमा बनेगी, सूर्य के अश्व की तरह शरीर की आकृति बनती है। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपका कटी भाग ऊपर रहेगा, यहाँ कपालभाति कर सकते हैं 10 सेकंड। 7, कोबरा आसन। 8, पर्वतासन। पर्वत की तरह गर्दन जितनी अंदर ले लो, सांस को छोड़ करके पूरे हाथ पैर के पंजे जमीन पर टच, गर्दन अंदर। धीरे से 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं प्रज्ञा योग के 16 आसन, 1 नंबर से 16 नंबर तक। जैसे सूर्य नमस्कार की सूर्य की 12 राशियां हैं, ऐसे ही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। ये प्रज्ञा योग के 16 आसन महायोगी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी देवात्मा हिमालय से अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति की संभावनाओं की खोज लेकर के आए हैं। देखते हैं। नंबर 1,
ताड़ासन। नंबर 2 हस्तपादासन, धीरे से। नंबर 3 वज्रासन, वज्र और शक्ति नाड़ी के जागरण के लिए। 4 उष्ट्रासन। 5 योग मुद्रा आसन, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी को तेज करेगा। 6 अर्ध ताड़ासन। 7 शशांकासन। 8 कोबरा आसन भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन। 9 10 बायां दायां देखना। 11 वापस शशांकासन। 13 धीरे से उत्कटासन। 14 हस्तपादासन। 15 पुनः ताड़ासन। 16 में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस खींचिए, ओम का उच्चारण करिए। ओम। दोनों हाथ अनाहत चक्र पर सीधा रखे, रिलैक्स। शारीरिक दृष्टि से हम इतना अभ्यास अभी किए, अब हम प्राणमय कोष को सक्रिय करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास में प्राण तत्व के विस्तार के लिए प्राणमय कोष अन्नमय कोष को सजीव रखता है, जीवंत रखता है, जागृत रखता है, क्रियाशील रखता है। नदी चलती है, हर चीज अपनी जगह गतिशील है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर 13,000 लीटर हवा हम ले लेते हैं और छोड़ते हैं 21,642 सांसें। हमारे शरीर को 7 पेड़ों की हवा प्रतिदिन लगती है। तो आप सोच लीजिए कि यदि हम लंग्स फेफड़ों को मजबूत करेंगे तो हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने शरीर को सभी प्रकार के इन्फेक्शन से, कफ, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से बचाने के लिए और शरीर में स्फूर्ति पैदा करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। प्राण तत्व का विस्तार ही जीवन की व्यापकता है। ये शरीर यदि औजार है तो प्राणायाम इसकी चित्त की, चेतना की, प्राण शक्ति, पर ब्रह्म की महाशक्ति हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको शरीर मजबूत करना है, तो शरीर को आप मजबूत कर लेंगे, लेकिन जो शक्ति है वो शरीर में प्राण से आती है। जिनका प्राण बल कमजोर होता है वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, बहुत प्रमादी होते हैं। उनके जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास, आनंद अभाव रूप में रहता है, वैभव नहीं होता है। तो शरीर की दृष्टि से हम यदि मजबूत है तो हम प्राण की दृष्टि से ज्यादा मजबूत बने। तो प्राण ही पर ब्रह्म है, प्राण ही जीवन का आधार है। प्राण निकल पर शरीर की कोई कीमत नहीं, केवल जलाने का भाव है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर की चेतना निकल गई। आइए अब हम चेतना का विकास करेंगे। 4 प्रकार के प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम नंबर 1 जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम, ये कुंडली महाशक्ति का जागरण करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन इसे भी मुक्त करता है। लगा लीजिए ज्ञान मुद्रा बाएं हाथ की, देखिए तर्जनी और अंगूठा। दाहिने हाथ की हंस मुद्रा, बीच की 2 और अंगूठा, इसे नासिका पे रखिए। दाहिना हाथ सूर्य नाड़ी पर और ये दाहिने हाथ के ये दोनों उंगलियों को चंद्र और सूर्य नाड़ी को चलेगा। यह हमारा सूर्य तत्व है, ये चंद्र तत्व है। जहाँ प्राण मिलता हो सुषुम्ना नाड़ी। देखिए बाएं से लीजिए, दाहिने से धीरे धीरे अंगूठा हटाकर श्वास को खाली करिए। फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए।
अब इसको इस तरीके से करेंगे, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, पुनः राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। बस ऐसा चलता रहेगा। जिससे लिया है उसके अपोजिट साइड से छोड़ना है और जिससे छोड़ा है उससे पुनः लेना है। करेंगे 10 बार। शांत गति, मध्यम गति और तीव्र गति। रिलैक्स, आंखें बंद, हाथ गोदी में, चेहरे को प्रसन्नता से कमल पुष्प की तरह प्रसन्न रखे। उदयमान सूर्य के तेज से हमारा स्नान हो रहा है, क्योंकि सारा जगत, दसों दिशाएं, ब्रह्मांडी ऊर्जा योग के समय प्राणायाम में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। शरीर की और स्थान की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। दूसरा प्राणायाम है साधकों, जिसे हमारा ऋषि कहता है शीतकारी प्राणायाम। ये शीतल प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम हाइपर एसिडिटी, आर्टिस हार्निया, मुंह में छाले, पेट में छाले, 12B की कमी, इसे भी पूरा करता है। देखते हैं इस प्रकार से। पहले हम करेंगे शीतल प्राणायाम। जीवान को बाहर निकालिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इसे गोल पाइप की तरह गोल करिए। जीवान को बाहर दबाव देंगे, हवा को अंदर खींचेंगे। करेंगे 10 बार। जीवान अंदर गई, सांस बाहर नाक से आएगी। थायराइड ग्लैंड, टॉन्सिल की ग्रंथियां और लार बनाने वाली, सलाइवा बनाने वाली ग्रंथियां सक्रिय होती है। विश्व की सबसे बड़ी दवा है सलाइवा, लार। जितनी लार अधिक बनेगी, पानी भी बहुत जल्दी जल्दी ना पिए, चबा चबा के पिए। खाना भी बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं, धीरे धीरे महीन पीस करके खाएं। जितना सलाइवा मिलेगा उतना पाचन तंत्र मजबूत होगा, सप्त धातु रिष्ट पुष्ट होंगे। अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, रस, शुक्र, ये 7 धातु किसी कंपनी में नहीं बनती है। ये जितना सलाइवा अंदर जाएगा उतना ये तेज बनेगा, और इसके लिए शीतल प्राणायाम बहुत अद्भुत है। दूसरा है शीतकारी। देखिए इस प्रकार से दांतों को दांतों से मिला दीजिए और पीछे वाली डांट जहां से सलाइवा बनाने की ग्रंथियां है, वहां से सांस को प्रेशर से अंदर लीजिए। जीवान को दांत के पीछे सटा दीजिए। होठों को मिला करके नाक से सांस को खाली करेंगे। देखो इस प्रकार। रिलैक्स। होठों को थोड़ा गीला कर लीजिए, सूख गया है, लार अब बनने लगी है। यदि आपको अंतिम सांस तक दिमाग को सक्रिय रखना है, स्मरण शक्ति को तेज रखना है, तो भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। देखिए भ्रामरी प्राणायाम से नींद अच्छी आती, ब्लड प्रेशर शांत रहता है, मन मस्तिष्क में भय, क्रोध, गुस्सा नहीं आता है। हमारा ऋषि भी कहता है रक्त को गर्म रखो, हृदय को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। वही तो ईश्वर की शक्तियां वास करती है, जहाँ पे रक्त गर्म होता हो और हृदय कोमल होता हो और मस्तिष्क ठंडा और शांत होता हो। और ये मिलेगा आपको भ्रामरी प्राणायाम से। भ्रामरी प्राणायाम को देखिए, ये 3 उंगलियों को ऐसे दबाइए और तीनों को टाइट रखिए। ये 2 तो टच हो गई, कनिष्ठ और अनामिका। अब ये आपका पॉइंट है पैंक्रियाज का, इसको दबाना है। और ये नासिका की चंद्र सूर्य नाड़ी,
ये पिनियल ग्लैंड भ्रुगुटी की आज्ञा चक्र को और ये कान के ढक्कन को बंद करना अंगूठे से। कान के अंदर अंगूठा नहीं डालना है, ये जो ढक्कन है इसको ऐसे करके बंद करना है और ये टच। लंबा और गहरा सांस खींचिए। ओमकार का नाद करते हुए भामरी प्राणायाम 4 बार कीजिए। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। ओंकार की प्रतिध्वनि आकार उकार मकार सुनाई दे रहा है। शरीर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संतुलित हो रहा है। न्यूरॉन्स, मस्तिष्क का एक एक हिस्सा, पांचों ज्ञान इंद्रियां आराम, ढीला छोड़े, शांत। साधकों, आयुर्वेद में जैसे पंचकर्म होते हैं, इसी प्रकार से हमारे योग विज्ञान में षटकर्म होते हैं। तो षटकर्म के अंतर्गत जैसे नेति, धोती, वमन, शंख प्रक्षालन और कपालभाति। ये कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये योग विज्ञान का षटकर्म है। तो इस क्रिया को करने से जैसे ही आप योग विज्ञान में जैसे त्राटक करते हैं, जल नेति करते हैं, सूत्र नेति करते हैं, वमन करते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं, इसी तरीके से ये छठा कर्म है जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति के पूर्व अग्निसार क्रिया करना है। अग्निसार क्रिया के बाद कपालभाति हम संपन्न करेंगे। इससे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा ठीक होता है, भूख प्यास नियंत्रित होती है। देखते हैं रोगों से बचने के लिए योग प्राणायाम में जो गंदगी शरीर में इकट्ठी हुई है उसे बाहर निकालने की क्रिया का नाम कपालभाति है। चलिए, सूर्य मुद्रा इसे कहते हैं। अनामिका अंगूठा मिला लीजिए, ये अलग अलग उंगलियों को टच करने पर मुद्राएं बनती है, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। देखिए, तर्जनी आपका अनामिका अंगूठा मिला लिया टीची उंगली के पास के, यहां रखिए। मुंह से सांस छोड़कर पेट को ऊपर नीचे खिंचो छोड़ो, खिंचो छोड़ो। अब करेंगे हम 1 मिनट तक कपालभाति। सांस को बाहर फेंकना, लेना नहीं है। मुंह बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी। कपालभाति से बंद औरी की गांठ ग्रंथियां शिष्ट खुलते हैं, सुसंतति की प्राप्ति होती है, भाइयों को प्रोस्टेट की बीमारी ठीक होती है, भूख प्यास अधिक कम लगना संतुलित होती है। बहुत ही शानदार प्राणायाम है कपालभाति। ये इसकी मध्यम गति है। अब इसकी तीव्र गति, पहले यहां से चला था, दूसरा यहां से चला था, तीसरा यहां से चलता है विशुद्धि चक्र से।
रिलैक्स। साधक भाई बहनों, हमारा जो पंचभौतिक शरीर है, जो प्रकृति माता ने 5 तत्वों से बनाया है, ये दवा नहीं, शुद्धि मांगता है। ये दवा नहीं, बहुत ज्यादा खाना नहीं, बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं, ये ध्यान मांगता है। क्योंकि देह देवालय में अपार संभावनाएं हैं। योग वशिष्ठ में ऋषि लिखते हैं, योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्व के किसी भी व्यक्ति में जो कला है, वो कला हम में भी है, लेकिन वो सुप्त है। योगिक क्रियाएं, प्राणायाम की क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं, वो ध्यान, इसका जागरण करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं ध्यान की ओर। भाइयों बहनों, सबसे पहले हमने आसन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, उसके बाद ही ध्यान किया जाता है। और कपालभाति भी अंत में ही करना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है स्वयं के केंद्र में स्थित होना। ध्यान का अर्थ होता है स्व चेतना का अनुभव करना। ध्यान के कई प्रकार हैं। भगवान बुद्ध ने जैसे विपस्सना के बारे में कहा कराया कि अपने ही सांस को गहराई से देखते रहो। यदि कोई बोले कि विपस्सना किसे कहते हैं, तो एक शब्द में आपको बता दिया, स्वयं के आते जाते सांस को आनापान क्रिया के समय प्राण को गहराई से देखते रहो। एक एक सांस हमारी जानकारी से अंदर जाए और बाहर आए, इससे मन एकाग्र होता है, चित्त की गांठें खुलती है, राग और द्वेष हमसे दूर होता है, भय और भ्रम मिटते हैं। ध्यान हमारे शरीर की ऊंचाइयों को ले जाने का एक विमान है। इसमें जाने का तरीका, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, इसे कहते हैं वितराग मुद्रा। सुख पूर्वक बैठ जाइए, कमर पीठ गर्दन सीधा कर लीजिए। अभी हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे, मात्र 1 मिनट का। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहूंगा। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ज्ञान योगी की तरह हमारा चिंतन होगा और भक्ति योगी की तरह हमारा चरित्र होगा और कर्म योगी की तरह हमारा व्यवहार होगा। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उत्तम बनाने का हमने आज संकल्प लिया, राष्ट्रीय सद्भावना का। आप सबको हृदय की गहराइयों से नमन, प्रणाम, वंदन। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करती हूँ हमारी डॉक्टर पूनम शर्मा से कि वो आकर हम सब मतलब हमारे गुरुजी का धन्यवाद करें। नमस्कार आचार्य जी, जो आज का बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा शुरुआत हुआ है और हम चाहते हैं कि आज जो आपने हमें सूत्र बताए हैं जीवन के और कैसे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, हम पूरा वर्ष मतलब जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे। ये एक दिन की सूत्र नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे आज के योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रारंभ हुआ है और आगे भी इसके बहुत प्रोग्राम है जो चलते रहेंगे। और इस आयोजन के लिए और हमारे सब स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को आप जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।